Okay, a very good afternoon to everyone outside there, and it's me, Dr. Sonam Verma from Suresh Gyan Vihar University. And today we all are here gathered on this online platform for learning and gaining the knowledge regarding the physiotherapy post-COVID. And here we have a wonderful speaker with us, that is Ms. Sakshee Jain. And let me introduce to her briefly to everyone that she is the founder of Lymph Breathe. Lymph Breathe is a physiotherapy clinic which she is running currently, and which is the clinic for the well-being of the lungs and the lymphatics. She has done her master's in the specialization of cardiopulmonary, and also she is previously she was working in the Manipal University as an assistant professor in Department of Physiotherapy, and before that she was in Jaipur working as a assistant professor in Mahatma Gandhi University. And it's my personal experience also that I have learned so much from ma'am, that when I was a student she was my teacher, and it's very wonderful and gives me a great privilege me to introduce to her to everybody. And thank you ma'am for being coming here. So over to you, ma'am. You can start your presentation. Thank you, Sonam. Thank you for the wonderful introduction. Yes, and we are thankful that we have students like you who are doing so great. We feel so proud of you all, that each one of you is doing so great in their respective areas. So I am cardiopulmonary physiotherapist. As she has already told a lot about me, let's not waste time in introducing myself. Hello, welcome one and all. Good afternoon, and I hope with this session I'll just give you some glimpse of what we do, what you need to know, and how you can help yourself. So, as Sonam said, I will be talking in Hindi as well as in English. So let's see. So today I will just talk about effects of COVID. As we all know, COVID is right now a huge pandemic, not only in India but all over the world. And it's not just affecting your respiratory system. Yes, it's coming in limelight because it's primarily affecting your lungs, but then it's also affecting different systems in your body. So I'll just talk about briefly like what is happening on in each system. And it's not about in COVID in the sense like you are infected with COVID. I'm not talking about that. I'm talking about after COVID, post COVID infection. I'll be talking about that. So then I will talk about like why you should consult a physiotherapist, and why I think that it's a good idea if you consult a physiotherapist before beginning your routine after COVID. And then important checks for one and all. So here in this slide, this is a beautiful review done by Nalbandian A and et al. So these people have done a beautiful review in which they have taken a lot of studies and done research and have learned a lot, and then put across, they have made a dish, a beautiful dish, and then they have just given us in a platter, served in a platter, so that we can read on it and then we can serve it accordingly. तो ये सब लोगों के लिए है, इट्स नॉट जस्ट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, ये उन सब के लिए भी है जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं जिनको कोविड हुआ है. और इसमें इन्होंने ये सिंपली बताया है कि इफ यू कैन सी, एंड हियर दे आर टॉकिंग अबाउट वीक 1 एंड वीक 4, ये तब है जब आपका डायग्नोसिस हुआ कि आपको कोविड है. We are always saying that it's 14 days of quarantine, 14 days of isolation. पर ये हमारे को जरूरी है जानना कि हाँ 14 days of isolation is there, 14 days of quarantine is there, लेकिन आपका वायरस 14 days में काम करना बंद नहीं कर रहा है. आपकी बॉडी में जिस वायरस ने अफेक्ट किया है वो उसके बाद भी काम कर रहा है. इट्स जस्ट दैट कि अब वो आपकी बॉडी से किसी और की बॉडी में जंप करके नहीं जा रहा, या आपकी बॉडी से निकल कर किसी और की बॉडी को अफेक्ट नहीं कर रहा आफ्टर 14 days. बट द होल प्रोसेस acute COVID जो रिकवरी पूरी है, that is entire month. It is for 28 days. Recovery is needed to get out of your COVID. So acute COVID, not COVID, acute COVID, I'll say. Acute COVID में आपका 14 days में symptomatically you will be showing so much of symptoms. You will be taking a lot of medications, either in hospital or in home. You can have mild, you can have moderate, or you can have severe
फॉर्म ऑफ कोविड, जहाँ पे आपको आईसीयू में भी एडमिशन लेना पड़ा, या फिर आप घर पे रह के भी अपना ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं इजीली। तो कोविड बहुत डिफरेंटली हर किसी को अफेक्ट कर रहा है। इवन उसके सिम्टम्स की रेंज बहुत ज़्यादा है। इट्स जस्ट नॉट फीवर, सिंपल फीवर भी नहीं है कि हाँ भाई सिर्फ फीवर है, हेडेक है, पर बहुत सारे सिम्टम्स हैं और हर किसी को हर तरह के सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं। एवरीबडी इज रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली टू दिस वायरस। और जो इनिशियल 14 डेज का जो वीक है, उसके बाद जो 28 डेज में आपका वायरस जहां जहां उसने अफेक्ट किया है, जिस जिस सेल में उसने अफेक्ट किया है, उस सेल की उसने डायग्राम चेंज कर दी। एक तरह से हम ये कह सकते हैं उस सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो जब वो सेल का जो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में चेंज हुआ है, आफ्टर वो जो सेल का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसके बाद अब वो नया स्ट्रक्चर आपकी बॉडी को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बेसिस पे ये बहुत सारे लोगों में देखा गया है। एंड बहुत लोग बाहर भी ये स्टडी कर रहे हैं, इंडिया में भी ये धीरे धीरे होने लगा है कि आफ्टर 1 महीने के बाद, अब कोविड की 1 महीने के बाद भी कई लोग ये बोलते हैं कि उनको काफी कुछ अभी भी महसूस हो रहा है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एक तो कि 4 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच में, और एक 12 हफ्ते के बाद तक भी, इवन आफ्टर 12 months, 12 weeks, even after 12 weeks, the process is just going on, going on, going on. सो आइडली क्या क्या सिस्टम, क्या क्या इफेक्ट हो रहा है ओवरऑल, अगर आप हम बॉडी की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर कोविड, आफ्टर 1 month ऑफ कोविड, काफी लोगों को कमजोरी महसूस हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वो पहले काम करते थे, अब वो वैसे काम नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत लोग ये भी बताते हैं कि उनको दे आर फीलिंग लॉट ऑफ वीकनेस, मसल्स पेन हो रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है, शरीर टूट रहा है। इस तरह के काफी कंप्लेन्स हैं जो कि देखने में आए हैं। लंग्स में कैसे इफेक्ट कर रहा है वो, लंग्स में आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रेथलेस हो रहा है, कुछ भी थोड़ा बहुत काम करे उसके बाद आपको हाफ नहीं छूट रही हो, लाइक यू आर टेकिंग अ ब्रेक टू ब्रीथ। तो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। काफी लोगों को खांसी की दिक्कत आ रही है, कुछ लोग खांस रहे हैं बट इट इज अ ड्राई कफ, कुछ खांसी में आ नहीं रहा है, सूखी खांसी है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है। काफियों को ऑक्सीजन की नीड बाद में भी हो रही है आफ्टर getting well from COVID infection, but they still require oxygen. If we talk about brain and your psychiatric system, you are facing anxiety, depression. काफियों को sleep में problem आ गई है, they are not able to sleep as well like before. पहले इन्फेक्शन से पहले बहुत अच्छी सोते थे, उसके बाद अब देख रहे हैं कि बहुत डिस्टर्बेंसेस है स्लीप में, नॉट पीसफुल स्लीप, डिस्टर्ब स्लीप हो रही है, या नींद ही नहीं आ रही है। देयर इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, then there is brain fogging which is happening. You're doing something and then you're not able to relate it with things. Okay, why? There is sir dard, headaches, and then you can feel related to your heart, it is happening, chest pain ho raha hai, palpitation is something heart to andar, everybody's heart is pumping inside but we are not able to hear it, right? But then there are certain times when we feel like, oh, I can hear my heart pumping out so loud. So when that loud sound is coming, that is called palpitations. तो काफियों को ये भी फील हो रहा है जो पहले कभी नहीं था। I was normal, I am fit, I was going to gym, I was going to do this, I was doing that and this, but now I feel all these things which was not there earlier. So these are the prolonged complaints which we are hearing from the people who were affected by COVID. एंड काफियों को थ्रोम्बस, आर्टरी में क्लॉट जैसी प्रॉब्लम्स भी हो रही है, किडनी डिजीजेस आर कमिंग अप, हेयर लॉस, काफियों को मेटाबॉलिक सिम्टम्स भी हो रहे हैं। आई वॉज नॉट डायबिटिक बिफोर बट नाउ आफ्टर कोविड आई एम टेकिंग मेडिकेशन फॉर डायबिटीज, क्योंकि मुझे डायबिटीज हो गई है। तो इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं विच इज पोस्ट कोविड। So I'm talking about post COVID. I'm not talking about COVID. I'm talking about after 1 month of COVID, what is still happening with people, and then how those people should approach, what should be their approach, and how should the physiotherapist approach should be there for those people who are suffering from these. Because ये जितनी भी प्रॉब्लम्स लिस्ट आउट की गई हैं, जितनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, अगर आप किसी फिजिशियन से या किसी के पास जाते हैं, दे ऑल गेट योर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सारे इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, बट यू विल कम नॉर्मल इन ऑल। हमारे सारे रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आएगा। एंड प्रॉब्लम सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि सब कुछ नॉर्मल है पर फिर भी हमें प्रॉब्लम है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एज एन इंडिविजुअल जिनको कोविड हुआ है ये समझने के लिए
कि ये हमारी बॉडी जो भी रेमिनेंस, जो न्यूसेंस उस कोविड वायरस ने अंदर बाकी सेल्स के साथ किया है, वो अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, वो ठीक हो रहे हैं. द प्रोसेस इज स्टिल ऑन ऑफ रिकवरिंग, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को समझें. As a physiotherapist, it's important so that we can give therapy accordingly. And as an individual who is suffering from post-COVID, it is important so that you can explain it to your therapist, and then therapist can help you as per your needs. तो इस ब्यूटीफुल डायग्राम में आप ये पिक्चर, दिस इज बीन गिवन बाय जेसिका डिमार्स. शी इज फ्रॉम ब्रीथवेल फिजियो इन कनाडा, एंड शी हैज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कि फिजियोथेरेपी ये नहीं है कि सिर्फ ब्रीदिंग कराओ इन एंड आउट. It's not just that. It's not only breathe in and out, but we need to take care of all the other problems which are happening, like dysautonomia, fatigue, cough control, and dyspnea. Breathlessness है आपको, कमजोरी है, आपको फील हो रहा है कि बैठते हैं चक्कर आते हैं, खड़े होते हैं चक्कर आते हैं, उसको कैसे ठीक करना है, कफ को कैसे ठीक करना है, और ये सब कैसे ठीक कर सकते हैं. एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमको सुनना बहुत जरूरी है. हमको उन सबको सुनना बहुत जरूरी है जिनको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. तो ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लिसन टू देम, और उनके साथ हमको उनको बिलीव भी करना है. ये नहीं कि probably this is in your mind. No, this is a wrong statement to say, because it's not in their mind. Nobody would want to be sick all the time. Nobody will want to not to do their favorite activity because they are facing problems, and that is why they are sharing it with you. So it is our important job as a physio to understand, to believe them, and then work on them along with the person involved. आप उन सब चीजों को सुनकर, उन सब बातों को सुनकर, समझकर उसके ऊपर वर्क करिए to enhance the quality of life of the person who has come to you with the need of help, with believing, trusting you that you can help them to recover and to improve the quality of life. So it's important that we cover each and every aspect of physiotherapy, not just lungs per se. Now, as a physiotherapist, now as a cardiopulmonary physiotherapist, what do I do? First step is safety. Foremost and most important step, if I'm not taking care of safety, I'm not supposed to go ahead and treat these people with post-COVID. So what exactly I need to do in safety? I need to take all the precautions. I need to understand. I need to assess. I need to reassess every individual, every person, and look out for any specific reason why I should not go further. Or if I'm going further, how should I go further? What should be the speed of the management? Now, it should not be generalized. Your therapy for each and every person suffering from post-COVID should not be generalized. Since the symptoms are not generalized, how can our therapy be generalized? So it's important that we need to take safety in measurements, assess the vitals, monitor the vitals, and as per our assessment, go ahead, progress. And this will create wonderful results in the people who are coming to you with post-COVID. Now, expectations check. Now, it's important. You are coming to me and you are saying that, see, I was going to gym. I was doing like 3 or 4 hours of workout in the gym. I was lifting so many weights. And now after COVID, I'm not able to, do any of it. If I'm doing, I'm becoming more, I'm getting fatigue. I'm becoming more weak. So what to do? So now you need to understand what is the expectation of the person coming to you. Now, once you know the expectations, it is important that you tell that person who has come to you that, okay, we understand what you want, but now you need to understand how to go for it. It's not that you have recovered and you can go into a gym and continue what you need to do, but before that, there are multiple checks you need to know, you need to do with your body, and then get into the track which you want. So it's important. Sakshee ma'am? Yes? Ma'am, please kindly share the screen again. Okay. Actually, it got minimized, so it was not on the complete background. Yeah, just a minute. I'll just show you once again. Yes. Sorry for this disturbance, technical. No issue.
Okay. Can Yes, you ma'am. see my screen now? Yes, ma'am. Now it's visible. It's okay now? Yes, ma'am. Okay. So shall I continue? Yes, ma'am. You can. Yeah. So then coming to history. Now this is, as a physiotherapist, it's important for us to assess the patient. And in these post-COVID patients, it's important because we cannot do a lot of assessment in these patients. So it's important that we take a good quality of history from them. We need to take history of the infection, understand how was the infection in them, what were the symptoms they faced. If the person is telling you that they had fever, understand what was the grade of fever. It was a low grade fever, high grade fever, how many days they had fever, what are the other symptoms they faced, whether they were in hospital or they managed themselves at home, whether they required oxygen or they were without oxygen, या फिर जो हॉस्पिटल में थे उनको आईसीयू सपोर्ट रिक्वायर हुआ था कि नहीं हुआ था. ये सब हमें जानने की बहुत जरूरत है. ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इन्वेस्टिगेशंस, what were the investigations done, what was the result of those investigations, if those investigations were done, what you take a reference, what you understand by those investigations, how the body has reacted to that particular virus, how this body particularly reacted to that virus, how you combated, how the person has combated with the disease, what all medications were given to the patients, what all medications still the person is on. This is important because this will help us to know better, much more about a person whom we are treating, we are helping. And it is also important as a person that when a physiotherapist is asking you all these sort of questions, आपसे ये जब questions पूछे जाते हैं, आप इनका जवाब अच्छे से दीजिए, क्योंकि ये फिजियोथेरेपिस्ट को हेल्प करेगा आपको जानने के लिए कि अगर आपको ये सब प्रॉब्लम हुई थी तो हम आगे बढ़कर क्या क्या कर सकते हैं आपके साथ. हमारा ट्रीटमेंट, आपका जो थेरेपी सेशन जो बनेगा उसमें हम आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रोग्रेस विद यू. सो इट इज इम्पॉर्टेंट. एंड सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी असेस करना है प्री एंड पोस्ट. प्री एंड पोस्ट मीन्स आपको कोविड हुआ था, कोविड होने से पहले आप कैसे थे. And this you need to know about your sleep, and about the anxiety, stress. कि कोविड होने से पहले भी आपको स्ट्रेस होता था या कोविड होने से पहले आपकी स्लीप कैसे थी, अगर वहां पे. एंड देन कंपेयर इट आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड, हाउ इज द स्टेटस विद द स्लीप, हाउ इज द स्टेटस विद द स्ट्रेस, हाउ इज द पेशेंट रिएक्टिंग, एंजाइटी कैसी है. तो ये सब को जानना बहुत जरूरी है. और ये कैसे जान सकते हैं हम, अगर हम अच्छे से हिस्ट्री लेंगे, हम क्वेश्चंस करते हैं या पेशेंट अपने आप हमें बहुत कुछ बताता है तो आस्क. पेशेंट को भी बताना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट को, और फिजियोथेरेपिस्ट को भी क्वेश्चन करना चाहिए पेशेंट टू remove all the doubts which they have. Yeah. Then coming to screening tools. Now this is important. Now why I'm talking about screening tools, क्योंकि post covid जरूरी नहीं है कि हर किसी को सिम्टम रहे. ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो सिम्टम एक को है वो सिम्टम किसी और को भी हो. इसलिए पोस्ट कोविड हम सेशन जनरलाइज नहीं कर सकते कि मैंने आज आपको यहाँ पे बता दिया आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए. ये मेरी तरफ से एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से ठीक हो रहा है और हर किसी को अलग अलग थेरेपी चाहिए. नोबडी नीड्स द सेम थेरेपी, नोबडी नीड्स इट एट द सेम टाइम. हो सकता है मैं किसी और को भी सेम एक्सरसाइज बताऊं, पर जरूरी नहीं है कि आज आपको बताइए तो उसको भी आज बताऊं. हो सकता है कि उसको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद बताऊं एज पर हिज बॉडी नीड्स, और आपको आज बता दी क्योंकि आप इफेक्टिवली कर सकते हैं. तो स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोस्ट कोविड में ग्रुप ऐसा है, एक ग्रुप है जिसको अगर हमने एक्सरसाइज नहीं दी तो वो वर्सन हो जाएंगे, उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट होगी, वो वीक होंगे अगर हमने एक्सरसाइजेस नहीं दी तो. पर एक ग्रुप ऐसा है जिसको अगर हमने एक्सरसाइजेस दे दी तो वो deteriorate हो जाएंगे, उनकी कंडीशन deteriorate हो जाएगी. So you see, this is where we are handling patients and this is where we are also hanging. कि अगर गलती से इस वाले पर्सन को हमने इस कैटेगरी में डाल के एक्सरसाइजेस दे दी तो हम उस पर्सन का लॉस कर रहे हैं, या फिर इस वाले पर्सन को उठा के दूसरी कैटेगरी में डाल दिया जिसमें हमको लग रहा है नहीं इसको एक्सरसाइजेस नहीं देनी, तो हम उसका लॉस कर रहे हैं. तो स्क्रीन करना बहुत जरूरी है. यस और नो कि हम इधर अच्छे से निकल सकते हैं, नॉर्मल थेरेपीज जैसे नॉर्मल रिहैबिलिटेशन चलता है वैसे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे कि हम थोड़ा सा स्लो
जाके उनको ठीक करें। एक्सरसाइजेस नहीं है कि यहाँ पे नहीं देनी, पर यहाँ पे हमें ध्यान से देनी है, और जरूरी नहीं है कि देनी भी है। यू नो, it can be only breathing which we can teach them and begin with, but it is important to screen them। तो कुछ स्क्रीनिंग टूल्स हैं, तो जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग क्या करना है यहाँ पे, which we called as post exertional malaise। This is a clinical term, post exertional malaise। हम हल्का सा exertion करते हैं and then your body just collapse। आप इतने ज्यादा वीक फील करते हो कि अब आप नेक्स्ट एक्टिविटी को करने की सोच भी नहीं रहे। आपको लगता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया कि मेरी बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, मुझे वापस से वही सिम्टम्स फील हो रहे हैं, मुझे हेडेक हो रहा है, बॉडी वीक हो रही है, फीवरिश हो रहा है। तो ये सब जब हो रहा है तो आपको अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करनी है कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं। And as a physiotherapist, you need to screen out those patients, you need to screen out those population, whether you can go ahead and start, or whether you need to, you know, assess, stop and assess, and then progress। So it is important to screen। So screen for post exertional malaise is important, utmost important। Then you can screen for, you know, there are many questionnaires like DSQ questionnaire to assess the malaise। You can look for it, I will not go into detail about it। और फिर Nijmegen questionnaire to assess the breathing, self SEBQ has to assess your again breathing pattern, to know how the person is doing breathing wise। then functional status assess करने के लिए WHO का questionnaire है। So ये सब questionnaires लेकर आप assess करिए, screen करिए patient को, and understand करिए कि where the patient is standing, where the person with post COVID is standing। and for the people who are post COVID, आप सब post COVID की category में fall करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस कैटेगरी में फॉल करो जहाँ पे आपको जरूरत हो ये सब करने की। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी फिजियोथेरेपी को अप्रोच कर रहे हो, बाय जस्ट से फिजियो, एनी मेडिकल प्रोफेशनल फॉर दैट मैटर। और फिजियोथेरेपी की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन टीम। तो हम आपको रिहैब कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो हो गई, ठीक भी हो गई, पर अब आपको रिहैब, यू नीड टू गेट बेटर, राइट, यू नीड टू गेट बैक एंड ट्रैक एंड यू नीड टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जब आपसे ये स्क्रीनिंग टूल्स यूज करने के लिए पेशेंट बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है आपसे, बोलते हैं कि क्वेश्चंस प्लीज आंसर करिए, तो उनको आप अच्छे से आंसर करिए एंड ट्रुथफुली आंसर करिए। वहां पे आपको ये नहीं सोचना कि अरे अगर मैं आंसर ऐसे करूंगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे, मैं इतना भी नहीं कर पा रहा। तो वी आर नॉट गोइंग टू जज यू फॉर दैट, बट वी रियली नीड टू नो वेयर यू स्टैंड, आपका क्या स्टेटस है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। ये एज अ फिजियो हमें जानने का पूरा राइट है, और आपकी सेफ्टी को हमें बताना भी आपका राइट है। अगर आप कहीं ऊपर नीचे करेंगे तो हम लोग सेफ्टी नहीं कर पाएंगे ना आपकी। So it's important that you truthfully answer all the things which a physiotherapy requires from you। Coming to intervention as a physiotherapist, assessment हमने कर लिया, हमको पता चल गया कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है। अब हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे ये हमारे हाथ में है। It's important to understand and see and observe and then implement। हर किसी को एक जैसा सिम्टम नहीं होगा, so you need to have a check। If the person is having fatigue, you need to take precautions, you need to follow stop, pause, and then stop, press, press, stop, press, press। Can you hear me? Hello? Yes ma'am, you are audible। So it is important that you stop, you rest and you pace, because people who are having fatigue, who are having post exertional malaise, in them it is important that they take rest, they stop and they pace their activities, their normal activities they have to pace। तो ये बहुत important है। और ये कैसे होगा? First and foremost important thing as a physio to do is to make your patient educated about what is expected out of them and what their body is going through, and make them aware of the situation। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, and we are in India, so India health comes after everything, and before that everything else comes। So it's important to make the person educated, aware of their well-being, and then proceed। And if you see the person is coming and complaining कि हमें अभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या हम अभी भी घर पे ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, हमें अभी भी
कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो चेक देयर ब्रीदिंग पैटर्न, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मैंने चेक किया है, जिनको मैं ट्रीट कर रही हूँ, दे ऑल ब्रीथ फ्रॉम देयर चेस्ट विच इज़ नॉट नॉर्मल। हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग होता है फ्रॉम एब्डोमेन, abdominal thoracic हो सकता है which is normal, but only using of chest because so many things are out there in the market, so many things are out there free of cost, and then everybody is telling to breathe, 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 and how they are breathing. So if you are breathing like this, how many breaths you can take? I cannot take more than 2 to 3. I will be tired because we are doing it wrong. We are all doing it wrong. We need to breathe from our belly. We need to use our abdomen. So it's important that we correct the breathing. सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप सही से ब्रीद इन करो. इट्स the only main thing important कि आप सही से breathe करो. Check whether you're using your nose or your mouth. If you're using your mouth, correct it. Use your nose. Teach nasal rehabilitation. Teach them how to start using their nose back, because after a period of time, it becomes a tendency to use mouth because it's easy to breathe from mouth, right? But then all the advantages which are there from breathing from nose, वो mouth के में नहीं होते हैं. You do not have those advantage in the mouth breathing. Then you need to have your humidified. If you are getting external air support, make sure that air which you're getting is humidified. Use humidifier. Let the humid air be go in. Yes, keep a check whether it is not too humid, and the water is changed daily so as to prevent other infections cropping up. So बहुत important है कि आप, और अगर ह्यूमिडिफाइड एयर नहीं है, आप ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑफ सपोर्ट हो, to keep your throat hydrated. It's important कि आप अपना throat hydrated रखें. Sips of water at every interval. Important, सबसे important है कि अगर आप सफ़र करते हो any of the acid reflexes, गैस प्रॉब्लम है, acidity प्रॉब्लम है आपको, तो have your prescribed medication for acidity, क्योंकि अगर आपको acidity है, it can cause reflux and it can cause problems with your respiration as well. Vice versa, ढंग से सांस नहीं लेंगे तो एसिडिटी भी बन सकती है, सो बोथ लिंक्ड हैं. तो इस पे काम करिए आपकी, आप उस हिसाब से कि अंडरस्टैंड कि पेशेंट को एसिडिटी है तो उसको पूछो, और पेशेंट को खुद को भी अंडरस्टैंड करना है कि अगर मुझे एसिडिटी हो रही है तो आई शुड नीड टू either make changes in the nutritional diet which I'm taking, or I need to take a help of a medicine to combat that acidity. तो एयरवे का मैनेजमेंट इस तरह से आपको करना है. ब्रीदिंग आपको करेक्ट करना है. Yes, it's okay, you have done 14 days, enough of deep breathing you have done. You need to do it now in the correct way. आपको ब्रीथ करना है और लो करना है. लो in the sense breathe fully to your diaphragm, to your abdomen. वो ऑटोमेटिकली पूरे लंग को एरेट करेगा. आप अगर सिर्फ चेस्ट ब्रीदिंग करोगे, आप सब करके देख सकते हो अभी, तो कहाँ आपको मूवमेंट फील होगा. यू आर जस्ट फीलिंग टिल हियर. मेरी सांस सिर्फ यहीं तक गई क्योंकि यहीं ऊपर उठा, मैंने अपने शोल्डर्स यूज किए, मेरी नेक यूज की, मेरा चेस्ट यूज किया टू ब्रीथ इन सो डीपली. बट एयर कहाँ गई? एयर सिर्फ यहीं रह के लिमिट हो गई, बस पूरे लंग्स में वो गई ही नहीं है. तो इम्पॉर्टेंट है कि आप आराम से सांस लो, जल्दी सांस मत लो, पेट से सांस लो. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिन लोगों को ये प्रैक्टिस हो गई है टू ब्रीथ फ्रॉम चेस्ट, do not make them do this in sitting. Start from lying. लेट के करिए, लेट के एक्सपर्टीज उसमें लीजिए. Once you are okay with lying down and only breathing from your abdomen, switch to other position which is side lying. Switch to other position which is prone lying. Then make the person sit and check. तब भी अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं अपना abdomen, only they are using check, again make them do it in lying down until unless the person start using their abdomen when you are checking for them. सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हम आप सब कैसे ये चेक कर सकते हैं. Every one of us just can keep one hand on your chest, one hand on your belly, and just normally breathe. Normal breathe, no deep breaths, no holding breaths, just a normal breath. You are breathing right now, I am breathing right now, I'm just keeping my hands on chest and belly, and see, observe which hand is moving, which hand is moving more, which hand is moving first. This way you can check yourself. अगर आप breathe chest से कर रहे हो, कैसे पता चल रहा है chest से breathe कर रहे हो? आप सांस ले रहे हो तो आपका chest का हाथ ही हिल रहा है, आपका पेट का हाथ नहीं हिल रहा है, या पेट का हाथ हिल रहा है लेकिन इतना कम हिल रहा है, ज्यादा chest का हाथ हिल रहा है.
अगर आपका चेस्ट का हाथ हिल रहा है, फर्स्ट थिंग इज यू शुड करेक्ट योर ब्रीदिंग पैटर्न. आपका ब्रीदिंग पैटर्न करेक्ट होते ही यू आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. वंस यू आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, many things are getting corrected. So important है कि आप नोज से ब्रीथ करो, स्लो ब्रीथ करो और लो ब्रीथ करो. ज्यादा हवा अंदर लेके जाने के लिए जरूरत नहीं है. नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हमारी 500 ml होती है. आप उतनी आप इजी स्लो ब्रेथ में भी ले सकते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. और जिनको होता है कफ, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, निमोनिया है. निमोनिया ठीक होगा. जब निमोनिया ठीक होता है तो कफ विद एक्सपेक्टोरेशंस आने लगते हैं. जरूरी नहीं है हर किसी को खांसी के साथ बलगम आए. Nobody, it's not necessary everybody is presenting with cough with phlegm, but yes, if you are coughing out phlegm, तो आप वो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिससे कि हेल्प हो. I am not into conventional physiotherapy. I don't use that a lot because those are passive techniques. I'm more into using of active physiotherapy जिसमें आप पर्सन से एक्टिवली करवा रहे हो. Yes, you need to check many things, use of accessory muscle, increase work of breathing, many things you need to check. But then it is important that you make the person do it actively because the results which active therapy yields, passive doesn't yield. तो अगर आपका पेशेंट जग रहा है, बैठा है, तो उसको कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी देने की जरूरत नहीं है. Ask the person to do active breathing cycle, active cycle of breathing technique, ACBT, which we call autogenic drainage. And if they have PEP therapy, you can use PEP therapy, external devices. तो उनका, बट ये सिर्फ उनको देना है जिनको फ्लेम आ रहा है, एक्सपेक्टोरेशंस आ रहे हैं. उन सबको ये नहीं देना है जिनका कफ ड्राई है, दे आर जस्ट बाकिंग कफ है, ड्राई है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है, उनको ये नहीं देना है. उनको सिर्फ आपको ये करना है कि आप उनको ये बोलो, एक ग्लास पानी अपने पास हमेशा रखें फिल्ड विद वाटर. और जब भी खांसी जैसा लग रहा है या खांसी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, पानी का एक घूंट पीजिए, उसको धीरे धीरे swallow करिए और रिलैक्स करिए. This is the breaking of your cycle of cough. This is how you can break dry cough का cycle. But then if it is, you know, expectoration है तो उसको clear out करिए. It's good. It's good that your lungs are clearing up things. It's good. But in case if you're not expectorating phlegm, आपका dry cough है, सूखी खांसी है, आपको कुछ नहीं आ रहा खांसी के साथ, तो it's better कि आप अपने throat को hydrated रखें. और जब भी खांसी जैसा कुछ हो तो एक सिप ऑफ वाटर को धीरे धीरे swallow करें एंड इट विल हेल्प. दिस इज अ रियली गुड टेक्निक टू हेल्प पीपल हु आर कफिंग अ लॉट. तो ये बहुत जरूरी है आपको करना, क्योंकि दिस विल यू नो help the patient. And coming to the functional activities, तो gradually you increase it, slowly, gradually, tortoise की जैसे pace पे, because that is what is going to work in this situation. You can read a lot about it, like post viral, viral ही तो है. आप ये सोचिए कि जब वायरल फीवर होता है, एक हफ्ते वायरल फीवर, यू आर डाउन विद 5 वायरल फीवर 5 days, नेक्स्ट वीक यू आर लाइक अभी भी मेरे को कमजोरी है ना. पर ये तो वायरल फीवर नहीं है, ये वायरल फीवर से बहुत ज्यादा है, इट्स टाइप ऑफ निमोनिया. तो आपको जब वो हुआ है तो अब आप ये सोचिए कि उसके बाद के इफेक्ट्स कितने होंगे. तो हमारे जब बाद के इफेक्ट्स है तो हमारी बॉडी को उस टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है, इट्स इम्पोर्टेंट. नाउ रही बात इंटरवेंशन की, नाउ वी हैव ऑल डन विद दिस. Coming to the outcome measure, this is what as a physiotherapist I'll be doing, and as a patient, मेरा अगर आप patient हो तो मैं भी आपको बताऊंगी क्या करना है, because I will not be available with you all the time, 24 hours I am not with you. I will be only there for a particular session and then a follow-up session. But then during that whole particular time, what needs to be done, what needs to be assessed. तो अभी हमारे पास क्विक क्या है, इन हैंड क्या क्या प्रेजेंट है. सबके पास अभी पल्स ऑक्सीमीटर है, द फिंगर ऑक्सीमीटर व्हिच वी आर यूजिंग ऑन आवर फिंगर्स टू चेक आवर ऑक्सीजन एंड हार्ट रेट, वो अपने पास रखिए. When you are prescribing something, some exercises, be it breathing exercise or be it as gentle as you are lying and you are doing diaphragmatic breathing, before and after ask the person to check. It will help you to know कि जो हम कर रहे हैं हम सही से कर रहे हैं, या जो पेशेंट कर रहा है वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो एक हमें पता चलेगा. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आप रेस्पिरेटरी चेक कर सकते हैं. ऑब्वियसली दिस नीड्स अ पर्सनल अटेंडेंस, बट इन केसेस व्हेन वी आर मैक्सिमम ऑफ अस आर ऑनलाइन राइट नाउ, वी आर डूइंग इट वर्चुअली,
तो जितना हो सकता है पेशेंट को ही बोल सकते हैं करने के लिए असेस एंड चेक, सो मेक इट इजी एंड सिंपल फॉर देम टू नो। तो पल्स ऑक्सीमीटर से आप उनका SpO2 चेक करिए, रेस्पिरेटरी रेट हार्ट रेट चेक करिए। ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का चेक। हार्ट रिलेटेड सिस्टम आपका हार्ट रेट हो गया। बीपी मॉनिटर, जिन जिन के पास है वो बीपी मॉनिटर से बीपी चेक कर सकते हैं। और आपका एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट आप चेक कर सकते हैं while using 30 seconds sit to stand test. This is a stand which I usually do with all because it's safe compared to all other tests. Yes, every other test is safe. पहले मैं 30 seconds का sit to stand करके देखूंगी कि हाँ मैं आगे वाला टेस्ट प्रोग्रेस कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। And which test I'm talking about is 6-minute walk test, जो अभी नॉर्मल आप और मैं भी सुन रहे हैं। 6 मिनट चलिए, उसके पहले का बात का देखिए कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कुछ नहीं पता बट करना है। तो सबसे पहले मैं जो करती हूँ वो 30 seconds is to stand टेस्ट। नो असेस, प्री पोस्ट चेक करो और उसके बेसिस पे आप इफेक्ट करिए। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज आई नीड टू नो वेदर आई नीड टू स्टॉप और नॉट। आपने 30 सेकेंड सिट टू स्टैंड किसी को कराया, उसका नॉर्मल वैल्यू जो है, जिस वैल्यू में आनी चाहिए वो वैल्यू आई, गुड प्रोग्रेस, गो अहेड विद नॉर्मल रेगुलर रिहैब रूटीन। बट अगर किसी का कम आया या किसी का हार्ट रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आया या किसी के ऑक्सीजन में ड्रॉप आया, इवन विद जस्ट 30 सेकेंड्स का सिट टू स्टैंड, तो दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इस पर्सन को हम कितना एक्सर्ट करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको ऑक्सीजन का चेक मेंटेन नहीं करके रखना है, आपको हार्ट रेट का भी देखना है कि हार्ट रेट नॉर्मल है, नॉर्मल उसमें इंक्रीज हुआ है। क्योंकि कुछ भी हम करते हैं तो हार्ट रेट में चेंजेस आते हैं, इट इंक्रीजेस, बट वेदर इट इज विद इन द लिमिट और वेदर इट इज इंक्रीजिंग बियॉन्ड द लिमिट। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को चेक करना कि हम कैसे कर रहे हैं। So these are the outcomes and this is what as a physiotherapist I should be doing, and as a physiotherapist all the other physios should be doing in the case of post COVID recovery. I'm not talking about any other cases here, it's about post COVID recovery. Now as a person, you are a post COVID person, you are survivor of COVID infection, आपको COVID हुआ, अब आपको क्या क्या ध्यान में रखना है ये आप सबके लिए है। टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ, इम्पॉर्टेंट है सबसे ज्यादा ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि वी फील लाइक ये है ना, ये मेरा ध्यान रख लेगा, वो है ना, वो मेरा ध्यान रख लेगा। कोई किसी का ध्यान नहीं रखेगा, सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना है, बिकॉज यू नो योर लिमिट, नोबडी एल्स विल नो योर लिमिट। आई डू नॉट नो राइट वेदर यू कैन डू दिस और नॉट, बट यू डू नो कि आप ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप पहले के कंपैरिजन में कैसा अब कर रहे हो ये आपसे ज्यादा किसी और को नहीं पता। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि अब आप अपनी हेल्थ को अपने कंट्रोल में लीजिए, अपनी बॉडी को समझिए कि आपकी बॉडी में ये कैपेबिलिटी है कि अब ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि हम स्टॉप कर रहे हैं उस एक्टिविटी को, हम उस एक्टिविटी को करेंगे, लेकिन शायद वो एक्टिविटी जो आप पहले कर रहे थे वो अब एक्टिविटी शायद एक हफ्ते बाद, डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ, और शायद 2-3 महीने बाद हम कर पा रहे हैं। कई लोग तो इसको 1 साल हो गया जिनको, या वो भी नहीं कर पा रहे। It's been more than 12 months for them, still they are facing problems. So this is what is happening in post-COVID recovery. But I'm not scaring any of you, please. But I'm just asking you all to take control of your health. Now pre-post checks जो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को बोला करने को, वो आप ही करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही अपने साथ रहेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट तो एक सेशन के बाद नहीं रहेंगे, वो आपको बता देंगे कि आप प्लीज ये करिए, आप प्लीज वो करिए, एक ये चेक करिए, एक चेक करिए, बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप प्री और पोस्ट चेक करिए। नाउ हाउ टू डू दिस, व्हेन टू डू दिस। जब आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो या आपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किया, उसने आपको कोई एक्सरसाइजेस बताई हैं, तो आप वो एक्सरसाइजेस करने से पहले चेक करिए, एक्सरसाइजेस करने के बाद चेक करिए। और अगर आपको दोनों में कोई डिफरेंस लग रहा है, अगर मान लीजिए आपको डिफरेंस आया, तो 3 मिनट के बाद फिर से चेक करिए। क्यों 3 मिनट? अपनी बॉडी को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए काफी होते हैं। तो वो 3 मिनट बाद जो पहले हुआ था चेक, वो बाद में भी आ जाएगी वैल्यूज, तो वो आपको बताएगा तो ठीक है, हमारी बॉडी ने ज्यादा एक्सर्ट नहीं किया। बट इन केसेस वेयर इट डजंट गो बैक टू नॉर्मल,
what it was before. That is the time when you need to tell your therapist कि भाई ये ऐसा है, तो वो आपके थेरेपिस्ट आपकी थेरेपी में चेंजेस कर सकते हैं. Until unless you do not tell this to your therapist will not be aware कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है. Even with a simple breathing exercise, how your body is going to react, the therapist will not understand and will not know until unless you do not do this with. तो ये चेक आपको करना है, और इन सबको मेंटेन करने के लिए आप एक लॉग बुक मेंटेन करिए. नाउ क्या करना है आपको इस लॉग बुक में? प्री पोस्ट तो हो ही गया. सिम्टम असेसमेंट जैसे कि मुझे पोस्ट कोविड है, आई एम अ पोस्ट कोविड पर्सन, आई एम माई सेल्फ अ पोस्ट कोविड पर्सन. तो अब मैं अपनी रूटीन लाइफ कर रही हूँ, राइट. अब उस रूटीन में मैंने आज एक कोई नई एक्टिविटी को किया. फॉर एग्जाम्पल, मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया. आई वेंट अप अ स्टेयरकेस एंड आई केम डाउन, राइट. दिस वाज अ न्यू एक्टिविटी फॉर मी आफ्टर कोविड इन्फेक्शन. व्हाट टू नो इन दिस इज, आप वो लिख लीजिए कि आज रूटीन से डिफरेंट मैंने ये एक्टिविटी की है. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस, व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस इज, क्योंकि अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी बॉडी को समझ लिए. फिर ठीक है, आपने एक्टिविटी कर ली, आप भूल गए, आप अपना काम कर रहे हो, एंड देन यू फील लाइक यार मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, या फिर आई फील लाइक आई एम फीवरिश, आई एम हैविंग लो ग्रेड फीवर, और आई एम हैविंग हेडेक, और आई एम जस्ट फीलिंग बॉडी एक. नाउ you should realize what you have done. Write it down in your log कि I am feeling this. Now अभी आपने रेगुलर एक्टिविटी से हट के एक एक्टिविटी की which was stair climbing, सीढ़ियां चढ़ना. उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम हुई. अब आपको ये नोट डाउन करना है कि ये प्रॉब्लम कितने घंटे बाद हुई. एकदम से हो गई, या कुछ घंटे बाद हुई, या 2 दिन बाद हुई. 2 दिन बाद भी हो सकता है आपको ये. आप बोलोगे पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों इतना थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, या क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वीकनेस, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बस लेटना है, मुझे सिर्फ सोना है, मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है. एनीथिंग फॉर दैट मैटर. एंड देन दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बाय सीइंग योर लॉग, बाय आस्किंग योर क्वेश्चन कि आपने ऐसा क्या किया था. तो आपको देन यू विल रियलाइज कि जो स्टेयरकेस आप 2 दिन पहले चढ़े उसका इफेक्ट 2 दिन बाद आया है, कि अब आपको 2 दिन रेस्ट करना पड़ेगा, राइट. तो अपने आप ये करने से अच्छा है कि आप अपनी बॉडी को समझिए. और आपको कौन हेल्प करेगा इसमें? फिजियोथेरेपिस्ट, ऑफ कोर्स, कि आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, राइट. तो प्लीज लेट द थेरेपिस्ट हेल्प यू. वी आर देयर टू हेल्प यू. सो इट्स इम्पोर्टेंट मेंटेन अ लॉग and good source of information. There are ample of information out there. If you're getting an information, if you're using some information, उसका सोर्स चेक करिए कि उसका सोर्स अच्छा है या नहीं है. जिस सोर्स से आया उस सोर्स को डीप नॉलेज है कि नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर डूइंग इट ऑन योर सेल्फ. इट शुड नॉट हैपन दैट यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड देन यू टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ. आप अभी तो ठीक लग रहा है, बट आफ्टर अ वीक और सो यू आर गोइंग टू कोलैप्स if it is not in your limit. तो कोलैप्स होने से तो अच्छा है कि आप ऐसी कुछ एक्टिविटी कर ही ना जो आपको कोलैप्स करे. तो इट्स इम्पोर्टेंट, have information. There is no problem in having information. Google is out there open for all, but then please check the authenticity of that information. Please check the source of that information, and please check whether it will be a beneficial information for you or not. Not necessary कि मेरे को तो ये एक्सरसाइज ठीक कर रही है, पर हो सकता है किसी और को वो एक्सरसाइज प्रॉब्लम कर दे. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने लिए इंफॉर्मेशन एक अच्छे सोर्स से लीजिए. कंसल्ट अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, अ स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट हु अंडरस्टैंड यू एंड योर सिम्टम्स पोस्ट कोविड. सो आप अकेले नहीं हो इसमें, हम सब साथ हैं. सो इफ यू नीड हेल्प प्लीज टेक हेल्प, क्योंकि अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना एक अच्छा आइडिया है. इट्स नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल. और फिजियोथेरेपी इंटीग्रल पार्ट है रिहैबिलिटेशन का. इट्स नॉट द रिहैबिलिटेशन आई मस्ट से कि हाँ मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा दिया, मैंने सब कर लिया. नहीं, फिजियोथेरेपी एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है. इट्स इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन, बट देन यू शुड हैव अ न्यूट्रिशनल गाइडेंस, यू शुड हैव अ फिजिशियन गाइडेंस, यू शुड हैव अ फैमिली सपोर्ट विद यू, you should have a counselor. If at all you feel like you need counseling, you need mental health support, please take support, because you are important, and for yourself you know how important
your health is. And it's no problem. We can get back on a track, be it slow and steady. Slow and steady wins the race, right? So here I stop my talk. So if there is any questions, please feel free to ask me.